Good morning, ma'am. Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Okay. Today we will continue our chapter, and next topic is speed of sound. मोहित read करो. यस मैम। मैम कहाँ से रीड करना है? Speed of sound. कहाँ से मैम? आवाज क्लियर नहीं आ रही। Good morning, ma'am. Speed of Good sound. morning. You must have heard the thundering of clouds and must have seen the lightning on rainy day. The thunder and the lightning are generated almost at the same time, but we see the lightning first and hear the thunder later. Why? The reason for this that the speed of light is much more than the speed of sound. The speed of light 30 मैम ये कितने हैं? 30 करोड़ मीटर। आपके बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है बेटा. म्यूट कीजिए अपना माइक, म्यूट कीजिए आप. मैम मैं रीड करूँ आकृति राय? हाँ, रीड करो. Okay, ma'am. Speed of sound. You must have heard the thundering of clouds and Thundering, must thundering. thundering of clouds and must have seen the lightning on rainy days. The thundering and the lightning are generated almost at the same time, but we see the lightning first and hear the thunder later. Why? The reason for this is that the speed of light is much more than the speed of sound. The speed of light 300 crore meter per second, and the speed of 30 sound crore, 30 crore. 30 crore meter per second, and the speed of sound at 0 Celsius is 332 meter per second, and at 20 Celsius is 340 meter per second. मैम हो गया? Okay. Speed of sound. You must have heard the thundering of clouds and must have seen the lightning of rainy days. आपने बरसात के दिनों में बादलों का गरजना और बिजली का चमकना देखा होगा. ठीक है, बादलों का गरजना सुना होगा, बिजली का चमकना भी देखा होगा, है ना? Yes, Here ma'am. the thunder and the lightning are generated almost at the same time, but we see the lightning first and hear the thunder later. Why? देखिए, जब ये जो बादलों का गरजना और बिजली का चमकना दोनों एक साथ होता है, लेकिन हमें बिजली का चमकना पहले दिखाई देता है, उसके बाद बादलों के गरजने की आवाज सुनाई देती है. ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है स्पीड की वजह से. द रीजन फॉर दिस इज दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज मच मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड. क्योंकि लाइट का जो स्पीड होता है वो साउंड के स्पीड से कई गुना ज्यादा होता है. द स्पीड ऑफ लाइट 30 crore meter per second and the speed of sound at 0 degree Celsius is 332 meter per second and at 20 degree Celsius is 340 meter per second. लाइट का जो स्पीड होता है वो 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड होता है. ठीक है, एक सेकेंड में 30 करोड़ मीटर उसका स्पीड होता है. और साउंड का जो स्पीड होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर पर सेकेंड होता है और 20 डिग्री सेल्सियस पर 340 मीटर पर सेकेंड होता है. तो अब यहाँ यहीं से आप लोग देख सकते हैं कि लाइट का जो स्पीड होता है वो साउंड की स्पीड से
कितना ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हमें पहले बिजली का चमकना दिखाई देता है, उसके बाद में हमें बादलों की गरजने की आवाज सुनाई देती है। ठीक है, ओके मैम। ओके होता तो मैम। दोनों एक साथ हैं, लेकिन स्पीड की वजह से हमें पहले बिजली की चमकना दिखाई देता है, उसके बाद में बादलों के गरजने की आवाज सुनाई देती है। ओके, ओके मैम। दिस प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। कुशल देवांगन, यस मैम। रीड करो। मैम कहाँ से? मैम यहाँ से। प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। यस मैम। इंटरेस्ट इंटरेस्ट एंड intense and soft, intense and soft. intense and soft. These interest of sound dependence on the। मैम ये क्या है? मैम ये क्या है? मैम मैम ये क्या है? एक सेकंड, है ना, कहाँ पर बेटा? मैम यहाँ एम्पलीट्यूड, पर एम्पलीट्यूड, एप्टीट्यूड। एम्पलीट्यूड। यस मैम। ऑफ वर्बैलिटी of large वाइब्रेशंस है, वाइब्रेशंस। vibration of large amount लार्ज people एम्पलीट्यूड, aptitude produce sound of high incest in इंटेंसिटी, intensity वाइब्रेशंस ऑफ, vibration of sound a pure स्मॉल एम्पलीट्यूड, small altitude produced soft sound when we hit a object head, then the object हार्ड, start then ma'am hard then देन द the ऑब्जेक्ट स्टार्ट start vibration वाइब्रेटिंग, vibrating with a large एम्पलीट्यूड, amplitude and intensity in sound in इंटेंस साउंड इज प्रोड्यूस। produced। ओके, स्टॉप। प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, साउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? सबसे पहला है इंटेंस एंड सॉफ्ट साउंड। इंटेंस मतलब बहुत तेज आवाज, और सॉफ्ट मतलब धीमा आवाज, है ना। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। मतलब किसी साउंड की जो इंटेंसिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। मतलब कितना ज्यादा वाइब्रेशन होगा हो रहा है, उस पर साउंड की इंटेंसिटी डिपेंड करती। वाइब्रेशन ऑफ लार्ज एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस साउंड ऑफ हाई इंटेंसिटी। जितना ज्यादा वाइब्रेशन होगा, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, उतना ही साउंड जो है हाई इंटेंसिटी वाला प्रोड्यूस होगा। वाइब्रेशन ऑफ स्मॉल एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस सॉफ्ट साउंड। और जितना ज्यादा वाइब्रेशन कम होगा, एम्पलीट्यूड छोटा होगा, उतना ही सॉफ्ट साउंड आपको सुनाई देगा। व्हेन वी हीट एन ऑब्जेक्ट हार्ड, देन द ऑब्जेक्ट स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद अ लार्ज एम्पलीट्यूड। जब आप किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, पीटते हैं, तो वो बहुत तेजी से वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें से लार्ज एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से इंटेंस साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तेज साउंड मैम प्रोड्यूस लार्ज होती का है। क्लियर? मतलब? यस मैम। क्या? मैम लार्ज का मतलब क्या होता है? लार्ज मतलब बड़ा। नेक्स्ट, लो एंड हाई पिच साउंड। Low and high pitch sound. You all know that Indian music has 7 notes. जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इंडियन म्यूजिक में 7 नोट्स होते हैं, है ना। 7 स्वर होते हैं, सुना होगा, सारे गामा पाधा नीसा, है ना।
These notes are ordered according to increasing frequency. इन notes को, ये जो स्वर है उनको इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया गया है. साउंड स्टार्ट फ्रॉम सा, कीप ऑन बिकमिंग शार्पर एंड शेपर. मतलब सा जो साउंड प्रोड्यूस होता है, सा को बोलने से जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो शार्पर होता है, शेपर होता है. दिस मीन्स द पिच ऑफ द साउंड इंक्रीजिंग. इसका मतलब ये है कि साउंड का जो पिच है वो इंक्रीज होता है. ठीक है. द साउंड ऑफ हाई पिच हैव हायर फ्रीक्वेंसी. और हाई पिच वाला जो साउंड होता है उसकी फ्रीक्वेंसी भी हायर होती है. फॉर एग्जाम्पल द वॉइस ऑफ वुमेन, जैसे कि वुमेन की आवाज, वॉइस ऑफ कुकू, कोयल की आवाज, मॉस्किटो का साउंड और श्रिल साउंड, ये सब कैसे होते हैं? हाई पिच वाले साउंड होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वाले. द साउंड ऑफ लो पिच हैव लो फ्रीक्वेंसी. लो पिच वाले जो साउंड होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी भी लो होती है. एंड इन साउंड्स हैवियर, और उनका साउंड कैसा होता है? हैवी होता है. जैसे कि मैन की आवाज, आदमियों की आवाज है ना, और शेर के दहाड़ने की आवाज, साउंड प्रोड्यूसिंग बाय ड्रम, ड्रम से जो आवाज आती है ड्यू टू द लो पिच. ये किसके वजह से होता है? लो पिच की वजह से होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज मेलोडियस साउंड एंड नॉइस. मेलोडियस मतलब मधुर ध्वनि और नॉइस मतलब बहुत तेज आवाज है ना. द साउंड विच इज प्लेजेंट टू आवर ईयर इज कॉल्ड अ मेलोडियस साउंड. वो साउंड जो कि हमारे कानों को अच्छी लगती है उसे हम मेलोडियस साउंड कहते हैं. एंड द साउंड विच इज नॉट प्लेजेंट टू आवर ईयर इज कॉल्ड अ नॉइस. और वो साउंड जो कि हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती है उसे नॉइस कहते हैं. नॉन हार्मोनियस वाइब्रेशन प्रोड्यूस नॉइस. जो नॉन हार्मोनियस होते हैं, जब उनका वाइब्रेशन होता है तो वो नॉइस प्रोड्यूस करते हैं, आवाज प्रोड्यूस करते हैं ना. और जो हार्मोनियस वाइब्रेशन होते हैं, जिनसे मधुर ध्वनियां निकलती हैं, that have a fixed relationship with each other produce melodious sound. हार्मोनियस वाइब्रेशन जो होती हैं, जैसे कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनसे मेलोडियस साउंड आती है. The vibration of different musical instruments are example of melodious sound, while the sound of a fired bullet is a noise. जैसे कि बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जो आवाज आती है, अलग अलग तरह की जो जो साउंड प्रोड्यूस होती है, वो कैसा है? मेलोडियस साउंड है. जबकि गोली चलने की जो आवाज होती है, फायर्ड बुलेट की जो आवाज होती है, वो नॉइस कहलाती है. ठीक, क्योंकि उसका जो वॉइस होता है वो बहुत ज्यादा तेज होता है, साउंड जो होता है बहुत बहुत ज्यादा तेज होता है, जिसको हम नॉइस कहेंगे. ओके, क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम. ओके, उसके बाद देखते हैं द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है. ठीक है. We are familiar with different kinds of musical instrument. आप बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जानते होंगे. चलिए बताइए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम बताइए. Ma'am, piano, guitar, piano, trumpet, guitar, piano, guitar, ma'am, इन tabla, सबसे कैसी साउंड प्रोड्यूस होती है? इन सबसे कैसी साउंड प्रोड्यूस होती है? ma'am, melodious. मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस होती है. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर मेनली ऑफ थ्री टाइप्स. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैविंग स्ट्रिंग, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें स्ट्रिंग होते हैं, जिनमें तार होती है ना, जैसे कि गिटार हो गया. ठीक. रीड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेम्ब्रेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. And in instrument having string, the string are made to vibrate by rubbing or stretching. जो इंस्ट्रूमेंट स्ट्रिंग वाले होते हैं, तार वाले होते हैं, उनको आप रब करते हैं, ये स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तब वो वाइब्रेट होता है. जैसे कि सितार, बीना, वायलिन, गिटार आर सम एग्जांपल ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद स्ट्रिंग. इन रीड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड एयर कॉलम वाइब्रेट. देखिए, रीड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं फ्लूट, बांसुरी. ठीक है, जिसमें एयर कॉलम प्रेजेंट होता है, बीच बीच में छेद होती है बांसुरी में. Yes, ma'am. हाँ, तो उसको हम कहते हैं रीड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. एयर इज ब्लो इनटू द रीड. हम क्या करते हैं? एयर को रीड के अंदर डालते हैं, है ना, एंड फ्लो थ्रू द रीड लाइक इन अ फ्लूट. और वो कैसे होता है? रीड में क्या होता है? फ्लो होता है, जैसे कि बांसुरी में होता है. देयर इज अ वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन इन द मेम्ब्रेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ड्रम, ढोलक एंड मृदंग. इसी तरह से मेम्ब्रेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? जिनमें मेम्ब्रेन लगा होता है ऊपर. एक आप लोगों को, जैसे कि आप तबला देखते हैं, ढोलक देखते हैं, ड्रम, मृदंग जो आप देखते हैं, उसके ऊपर में एक कवर होता है ऊपर में,
है ना, तो वो सब किस में आते हैं, मेम्ब्रेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आते हैं, जैसे कि ढोलक, ड्रम और मृदंग। ठीक है, तो समझ आ गया। म्यूजिकल ma'am. इंस्ट्रूमेंट कितने Yes, टाइप्स के ma'am. होते हैं, 3 Three. types. 3 types. कौन कौन सा? Musical instrument having strings. Musical instrument. Musical instrument membranes. Musical instrument. ओके, Other strings are made to vibrate by rubbing, stretching. हाँ, you would have seen musical instrument like manjira, jhang, करताल, घट्टम एंड नूट। आपने इसके अलावा कुछ और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी देखे होंगे, जैसे कि मंजीरा, जानते हैं आप लोग? Yes, ma'am. देखे हैं. हाँ, मंजीरा देखा है ना। झांग, करताल और घट्टम एंड नूट, ये जो होते हैं ये क्ले पॉट्स हैं। घट्टम एंड नूट जो है क्ले पॉट्स हैं। दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर प्लेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं इनको हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट में बजाए जाते हैं। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग और टैपिंग देम। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, जब इनको पीटा जाता है या इनको टैप किया जाता है, दबाया जाता है, तब साउंड इनसे प्रोड्यूस होता है। जल तरंग, बेल्स एक्सेट्रा आर एग्जांपल ऑफ सच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और ये जो हीटिंग और टैपिंग करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या हो सकते हैं, जल तरंग होता है, बेल होता है, बेल को भी हीट किया जाता है तब साउंड प्रोड्यूस होती है ना। Yes. Yes, ma'am. ओके, the next is the sound produced by human इंसानों के द्वारा साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। The throat is the most important source of sound in human beings. थ्रॉट मीन्स क्या होता है, स्वर यंत्र जो होता है, गले के पास जो होता है, जैसे आप बोलते हैं तो आपको वाइब्रेशन फील होता है, ठीक है, वो होता है थ्रॉट। तो ह्यूमन बींग्स में साउंड प्रोड्यूस करने का मेन सोर्स क्या है, थ्रॉट होता है। A narrow slit is found between the two vocal cords in the throat for passing air. ये जो थ्रॉट होता है उसमें वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होता है, स्वर यंत्र प्रेजेंट होता है, स्वर रज्जु जिसको कहते हैं, ठीक है। इसके बीच से जो साउंड होता है वो पास होता है। When the air from the lungs passes through the slit with a force, then the cord start vibrating. जब एयर जो होता है वो स्लिट के साथ में लंग से पास होता है, हमारे लंग से पास होता है फोर्स के साथ में, है ना, तो कॉर्ड्स जो होता है, वोकल कॉर्ड्स जो होता है वो वाइब्रेट होने स्टार्ट हो जाता है और साउंड जो है प्रोड्यूस होती है। The muscle attached to the cords can increase and decrease the pull on them. और वोकल कॉर्ड से जो मसल अटैच होता है वो कैसा होता है, इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है ना। जैसे कि आप बहुत जोर से चिल्लाते हैं तो उससे क्या होता है, आपका जो मसल होता है जो वोकल कॉर्ड से अटैच होता है वो फैल जाता है ना। आप जितना ज्यादा मुंह खोलते हैं वो वोकल कॉर्ड का जो मसल होता है वो उतना ही ज्यादा फैलता है, ठीक है। Yes, और जब ma'am. आप धीरे से बोलते हैं तो वो उतना ही कम होता है ना। Yes, ma'am. ठीक, तो समझ आ गया Yes. ह्यूमन बींग्स में कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट इज एक्टिविटी 9 हम देखते हैं। टेक 2 रबर स्ट्रिप ऑफ द सेम साइज का 2 रबर स्ट्रिप लेना है, प्लेस देम ऑन ईच अदर एंड स्ट्रेच देम टाइटली। दोनों को क्या करना है, एक साथ रखना है और खींचना है, टाइटली खींचना है, ठीक है। ब्लो एयर थ्रू द स्पेस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में जो स्पेस होगा उसके बीच में हमें एयर को ब्लो करना है। When air is blown between the stretched strip, then a sound is produced. जब आप खींचे हुए स्ट्रिप के बीच में एयर को ब्लो करते हैं तो साउंड कैसे होती है, प्रोड्यूस होती है। Our vocal cords also produce sound in the same manner. हमारा जो vocal cord होता है वो इसी तरह से साउंड को प्रोड्यूस करता है। Sounds of high frequency are produced when the cords are tightly stretched. जब हमारा vocal cord tightly stretched हो जाता है तब हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस होता है। और जब वोकल साउंड ऑफ लो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस व्हाइल दे आर लेग्स, जब वो लेग्स हो जाता है तब लो फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस होता है। यू कैन इवन यूज अ थिक रबर बैंड इन प्लेस ऑफ रबर स्ट्रिप। आप मोटे रबर बैंड भी ले सकते हैं रबर स्ट्रिप की जगह पे। द वाइब्रेशन कैन बी फेल्ट बाय पुटिंग योर हैंड ऑन द थ्रोट व्हाइल टॉकिंग। वाइब्रेशन को आप अपने से भी फील कर सकते हैं, कैसे, जब आप बोल रहे होते हैं तो बोलने पर आप अपने गले को छूकर देखेंगे तो आपको वाइब्रेशन फील होता है। Yes, ma'am. Yes, ma'am.
The length of the cord of an adult man is 20 millimeter. मतलब एक एडल्ट मैन में, एक बड़े जो आदमी होते हैं उनमें वोकल कॉर्ड का जो लेंथ होता है वो कितना होता है, 20 millimeter होता है. The length of the cord in women is approximately 5 millimeter smaller than men. मतलब वुमेन में जो वोकल कॉर्ड का जो लेंथ होता है वो आदमियों के वोकल कॉर्ड के साइज के कंपैरिजन 5 मिलीमीटर कम होता है. ठीक है, जैसे उनका 20 मिलीमीटर है तो इनका कितना होगा, 15 मिलीमीटर होगा, है ना. द वोकल कॉर्ड ऑफ चिल्ड्रन आर वेरी स्मॉल, दैट इज व्हाई देयर वॉइस इज क्वाइट शार्प. और बच्चों का जो वोकल कॉर्ड होता है वो बहुत ही छोटा होता है, जिसकी वजह से उनका जो वॉइस मैम? होता है बहुत होता है. यस मैम वोकल कॉर्ड क्या होता है? स्वर यंत्र जो हमारे गले के अंदर होता है, ओके मैम. जहाँ से वॉइस आती है. ओके मैम. The next is the sound produced by animals. Animals के द्वारा कैसे sound produced होती है. Many Okay. animals like dogs, cows, goats produce sound with the help of vocal cords. जैसे इंसानों में vocal cords होता है वैसे animals में भी vocal cords होते हैं जिनसे वो sound produce करते हैं. But all हाँ, animals do मैम, not have vocal cords. लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी animals में vocal cords present हो. The birds Ma'am. produce sound with the help of the special vocal instrument. Yes. मैम वो जो बैथिंग मतलब क्या होता है, बैथिंग? कहाँ लिखा है? और रुको मैम मैं अंडरलाइन करती हूँ. ब्रीथिंग. ब्रीथिंग ट्यूब लिखा है, ब्रीथिंग ट्यूब. यस मैम. वो श्वास नली है बेटा. ब्रीथिंग मतलब होता है श्वास, ब्रीथ मतलब होता है श्वास लेना, और ब्रीथिंग ट्यूब मतलब श्वास नली. यस मैम. ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सभी एनिमल्स में वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट हो, है ना. द बर्ड्स प्रोड्यूस साउंड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल वोकल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट इन इट्स ब्रीथिंग ट्यूब. जो पक्षी होते हैं उनमें साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, उनमें साउंड प्रोड्यूस होने के लिए एक स्पेशल वोकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि उनके ब्रीथिंग ट्यूब में, श्वास नली में प्रेजेंट होता है, जिसके द्वारा साउंड प्रोड्यूस होता है. Flies produce sound by vibrating their wings fast. उसी तरह से जो मक्खियां होती हैं वो साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, अपने पंखों को तेजी से वाइब्रेट करके, है ना. Frog produce the croaking sound with the help of its vocal cords. और जो फ्रॉग होते हैं वो जो साउंड निकालते हैं वो किसके हेल्प से निकालते हैं, वो वोकल कॉर्ड्स के हेल्प से निकालते हैं. Some fish generate sound by pushing air out of their air bladder. और कुछ फिश जो होते हैं वो साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उनका जो एयर ब्लैडर होता है उसमें एयर ब्लैडर में एयर को पुश करके, है ना. यस Yes, snakes do not have vocal cords but produce sound by pushing air out of their mouth. और स्नेक जो होता है उनमें भी वोकल कॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन वो भी साउंड निकालते हैं. वो कैसे निकालते हैं साउंड, अपने मुंह से निकालते हैं, है ना. यस एयर मैम. को मुंह से एयर को बाहर निकाल कर, है ना, एयर को आउट कर, ठीक है, तभी साउंड प्रोड्यूस होता है. यस मैम. समझ आया एनिमल्स में कैसे साउंड प्रोड्यूस होते हैं, ह्यूमंस में कैसे साउंड प्रोड्यूस होते हैं. यस मैम. क्लियर है ये चैप्टर, किसी को कोई डाउट है? नो मैम. नो. ओके, नो मैम. तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आप लोगों का. इसका क्वेश्चन आंसर मैं सेंड कर रही हूँ, नोट कर लीजिए आप लोग. मैम वेबसाइट पहले मैं क्वेश्चन आंसर सेंड कर रही हूँ, उसके बाद आउटसाइड करूंगी. यस मैम. ओके मैम.